नमस्ते। आपका स्वागत है रूल्स एंड रेगुलेशन के सेक्शन में एनालिटिका आयुर्वेदा पर। और यू नो वेरी वेल दैट वी हैव कंप्लीटेड we rule 158b, not completed but the completed the part 1 of the rule 158b. And in the last moment we have discussed in the last interactions we have discussed about the balya, saundarya prasadhak and aushadhi ghan. And I tried to differentiate between the laws related to the ayurvedic ahar, laws related to the this balya category, laws related to the cosmetic rule 2020, and the laws related to this saundarya prasadhak of the license issued under the rule 158b part A. Today I am going to discuss with you all friends about the rule 158 part 2nd, and that is the A. Here the tables, and as I said in the previous interaction that it is really very interesting and it may be helpful for the all clearance of the ethical committee and many more, where the people want a reference from you for approval of your research project. I don't understand why there is a need of every time for a reference when you are going for the research project. Research is what? Research is something which is new you are going to create, and that may be your information may be a reference for the next time people. If everyone is just going through the reference, means you are not doing a research but you are validating the research. What I feel and I am expressing before you, there is a freedom for the creativity and in an ethical boundary, but everything you can do if there is a reference, then what is the meaning of the research? How one can get something new creating? If only you are limiting himself or herself only in the boundaries of the reference, classical reference, contemporary, otherwise your thesis or the ethics committee will not approve your synopsis. Meaning of research is something new, and you encourage, and if the results are fine, then you will ask who will be responsible if results are not fine. Then make it first to the animal, then to the clinical human being. But even in the animal you want reference, then from where the new knowledge will be there? This is my humble question. Okay, come to the 158. Open your book. Already opened? Okay, good. So, but open your book, because we will go word by word, शब्द के साथ चलेंगे. तो रूल 158b second A, for issue of license to the medicine with respect to the Ayurveda, Siddha and Unani, the conditions relating to safety study and the experience or evidence of effectiveness shall be such as specified in column 5 and 6 of the table given below. Now, first I am apologetic to you that I am not showing you the table on a screen, because here is a need of some technicality to show it, and that is not available at the moment when I am making this recording at my home. And for you, because I am going outside from the Banaras for 4 days on an academic assignment, and on Monday you will wait for a new episode of the rule and regulation, and that should be recorded. So I am doing the job for the 9th October, today on 4th October. Yes. So column 5 and 6. Yes. I am trying to understand this with yourself, because it is really something which is should be very much this understanding is required for the all SLAs, state licensing authorities, to understand this rule and its provisions. Because when the SLA is demanding safety study, and then the ministerial staff who has taken the slot, yes, this license will be issued to you, and he is asking here and there,
कि व्हाट इज सेफ्टी स्टडीज. Okay, those who has queried, asked to them what is safety study. No, they have queried only, but they don't know how to conduct the safety study. This is the case, real case, back 4-5 months. So I'm trying to make you understand today, and try, please bear with me, see in your book. So here is the table classified into the columns: serial number, category, ingredient, indication, safety study, experience or the evidence of effectiveness is the column number 6. Serial number is the column number 1, category is the column number 2, ingredients is the column number 3, indications is the column number 4, safety study is the column number 5, and experience evidence of the effectiveness is the column number 6. And SLA will demand to you some certification as per the ingredients what you have submitted before them for the issuing of the license. So come to the 1. Ayurvedic Siddha and Unani drugs given in 158B as referred in 3A. तो 3A का मतलब हुआ क्लासिकल ड्रग्स. जो भी फार्मूले दिए हुए हैं ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बुक्स में, वो अगर उनके अंडर आपको लाइसेंस देना है 158B में और अंडर द सेक्शन 3A, तो इंग्रेडिएंट्स क्या है एज पर टेक्स्ट. जो फार्मूला आपका है, जो भी आपका फार्मूला है, जो भी आप फार्मूला ले रहे हैं, नवजीवन रस से ले करके आपका चित्रकादि बटी तक, त्रिफला क्वाथ से लेकर के तालिस आदि चूर्ण होते हुए दशन संस्कार चूर्ण तक, तो ये जो भी आपका फार्मूला इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सीधी सी बात है कि इंग्रेडिएंट्स एज पर द टेक्स्ट, क्योंकि आप क्लासिकल के कैटेगरी में सेक्शन 3A में लाइसेंस ले रहे हैं. इंडिकेशंस एज पर द टेक्स्ट, क्योंकि सेम डिट्टो वही घटक रखने हैं, वही अनुपात रखना है. देन सेफ्टी स्टडी नॉट रिक्वायर्ड. यदि आप लाइसेंस ले रहे हैं उन फार्मूला के लिए जो कि आपकी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बुक में शेड्यूल ए में नोटिफाइड हैं, क्लॉज सेक्शन 3A में, तो वहाँ आपको सेफ्टी स्टडी का डाटा SLA को, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नहीं देना है. कोई भी हमारी क्लासिकल फार्मूलेशन है उसका सेफ्टी स्टडी का डाटा हमें SLA को नहीं देना है. और ये रूल भारत में तो स्वागत योग्य है, ये विदेशों में भी है. यूरोपियन यूनियन में कोई भी अगर आपकी हर्ब्स है, प्लांट है, अगर वो 15 साल से उनके मार्केट में बिक रही है और अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड नहीं है, तो वहाँ भी वह बेरोक टोक आप बेच सकते हैं, उसका सेल कर सकते हैं. तो यहाँ तो हज़ारों साल के जो फार्मूलेशंस हैं, अरे भैंसेज रत्नावली को उठा लीजिए, वहाँ तो कंपाइलेशन है, तो वहाँ हज़ारों साल से लेकर के 300 साल तक के जो फार्मूलेशंस हैं उनके आपको सेफ्टी स्टडी नहीं देनी है, प्रोवाइडेड द इंग्रेडिएंट्स आर द सेम, proportion is the same, indication is the same. Then experience or the evidence of effectiveness, उसके दो कॉलम है, पब्लिश लिटरेचर एंड द प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस. देखिए, एक्सपीरियंस एंड द एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस 6 के दो कॉलम है, पब्लिश लिटरेचर एंड द प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस. पब्लिश लिटरेचर में इन्होंने कहा रिक्वायर्ड. यस, आप जिस किताब का संदर्भ दे रहे हैं अपनी लाइसेंस के लिए, उस किताब का, उस संदर्भ का, वो रेफरेंस का जेरॉक्स कॉपी लगा दीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में. क्योंकि इतने सारे फार्मूले, हज़ारों हज़ार, और उनके इतने सारे इंडिकेशंस और उनके इतने सारे घटक, तो वहाँ पर आप उसकी जीरोक्स निकालिए, भाव प्रकाश की जीरोक्स निकालिए, चरक संहिता की जीरोक्स निकालिए, जिससे आपने फार्मूला लिया है वो योग रत्नाकर का निकालिए, लगा दीजिए. तो ये लिटरेचर जो है, पब्लिश लिटरेचर ही आपका प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस है, एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस है. फिर ये अगला कॉलम कहते हैं कि प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस बाय सम स्टडीज. तो यहाँ वो नॉट रिक्वायर्ड है. किसमें? क्लासिकल फॉर्मूलेशन. आपको अपने उस ग्रंथ का एविडेंस देना है, जीरोक्स लगा के कि ये फार्मूला है, ये ग्रंथ है,
ये इंग्रेडिएंट है, ये इंडिकेशन है। लेकिन आपको अलग से करके कुछ इसका इफेक्टिवनेस कोई डाटा से, CTR से, CTRI से रजिस्ट्रेशन करा करके देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब आइए दूसरे पर आइए। एनी ड्रग in dosage forms of Ayurveda, Siddha and Unani drugs as described in section 3A or the Drug and Cosmetic Act 1940. Any change in the dosage form, ध्यान दीजिएगा, any change in the dosage form of Ayurveda, Siddha, Unani drugs is described in section 3A of the Drug and Cosmetic Act 1940. जो पुराने संदर्भ में अगर वो चूर्ण है, वो अवलेह है, आसव है, मसी है, गुग्गुल है, लवण है, भस्म है, परपटी है, कुपीपक्व रस है, तो अगर पुराने संदर्भ में आपने डोजेस फॉर्म नहीं चेंज किया है तो आपके लिए ये 1 लगता है, जिसमें कि आपको एज पर टेक्स्ट और सेफ्टी स्टडी नॉट रिक्वायर्ड जो आपका सर्टिफिकेट है किताब का, और बाकी नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपने डोजेस फॉर्म बदल दिया, सीतोपलादी चूर्ण का आपने बच्चों के लिए सीतोपलादी सिरप बनाया, कोई आसो अरिस्ट है उसका आप घनक्वाथ बना रहे हैं, कोई अवलेह है उसका आप एक अलग डोजेस फॉर्म देना चाह रहे हैं, हम उस घटकों को लेकर के आसोअरिष्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई हमारा लेप कल्पना का है उसका हम जो है लिनिमेंट बना रहे हैं, डोजेस फॉर्म उन्हें बदल दी, लेप कल्पना का ही घटक है लेकिन उसको हम ओरल देना चाह रहे हैं, टॉपिकल को सिस्टमेटिक कर रहे हैं, अगर हम डोजेस फॉर्म बदल रहे हैं तो हमारे नियम क्या कहते हैं, आइए देखिए। चूँकि आपने सिर्फ डोज बदला है तो इंग्रेडिएंट, डोजेस फॉर्म बदला है तो इंग्रेडिएंट वही होंगे जो फार्मूला है, इंडिकेशन भी वही होंगे जो एज पर टेक्स्ट है जो आप कह रहे हैं, सेफ्टी स्टडी यहाँ भी नहीं चाहिए, पब्लिश लिटरेचर यहाँ भी रिक्वायर्ड चाहिए, और प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस यहाँ भी नॉट रिक्वायर्ड चाहिए यदि आप खाली डोजेस फॉर्म बदल देते हैं। तो इतनी बड़ी लिबर्टी आपको सरकार ने दी हुई है कि आप डोजेस फॉर्म बदल सकते हैं, जैसे अर्जुन स्वरस, अर्जुन क्वाथ, अर्जुन चूर्ण, अर्जुन घनबटी, अर्जुन अवलेह, अर्जुन घृत, अर्जुन अरिष्ट, पारद गंधक से कज्जली, कज्जली से रस परपटी, रस सिंदूर, रस पोटली, डोजेस फॉर्म आप बदलते जा रहे हैं। तो उसके लिए भी अगर एक का डोजेस फॉर्म दूसरे में बदलना है, थोड़ा सा आपको बताएं कि एल्केन से अल्काइन बदल रहे हैं, अल्काइन से एल्केन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अगर आप स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे कि नहीं होंगे, इस पर अभी बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बात दिमाग में कौन थी तो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन यहाँ भी आपको काफ़ी कुछ संरक्षण दिया गया है कि क्लासिकल मेडिसिन्स के डोजेस फॉर्म आप बदल सकते हैं, बशर्ते कि घटक वही हो, इंडिकेशंस वही हो और ये चीज़ें आप सामने रखें। आइए तीसरे क्लॉज पर आते हैं। ये कहते हैं कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स रिफर टू 3A एंड टू बी यूज्ड फॉर ए न्यू इंडिकेशन। अब बात आई, अभी तक इंडिकेशन इन दोनों में जो उसका पहला मूल रूप से डोजेस फॉर्म था वो, और जो बदला गया, जो चेंज डोजेस फॉर्म, एक सिरप को टेबलेट बदला या टेबलेट को आपने अवलेह में बदल दिया उन्हीं घटकों को उसी शास्त्र के अनुसार, तो आपको इंडिकेशंस वही हैं, फलश्रुति वही है, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रमोट कर रही है सरकार बिना कुछ ज़्यादा खर्चा किए, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ यही करना है कि वो अपने ग्रंथ का जेरॉक्स करा करके लाइसेंस के साथ लगा देना है। लेकिन यदि आपने कुछ अपने दिमाग में ये सोचा कि यही फार्मूला तो ठीक है लेकिन इसकी रीपर्पजिंग कर देते हैं, हाँ ये शब्द ज़्यादा अच्छा है, रीपर्पजिंग कर देते हैं, इसके लिए एक नया इंडिकेशन दे देते हैं, इसका फलश्रुति अधिकार क्षेत्र बदल देते हैं। हम ये कहें कि सीतोपलादी चूर्ण है, हम इसको उपयोग कर सकते हैं पाचन तंत्र में, और लवण भास्कर चूर्ण है, इसको हम उपयोग कर सकते हैं काश श्वास में। यदि ऐसी कोई चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं और कोई सोच ला रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखिए
इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं क्योंकि आपको लाइसेंस है, इंडिकेशन है न्यू, नया है, तो आपको क्या करना है, फिर सेफ्टी स्टडी नॉट रिक्वायर्ड। बहुत बड़ा आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है क्योंकि वो घटक वही हैं और इंडिकेशन की बात वहाँ पर आ रही है, तो कह देते हैं कि ठीक है भाई, घटक वही है, वो हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बॉडी को, और कॉम्बिनेशंस भी वही हैं, प्रोपोर्शन भी वही है, औषधि पार्ट संयोजन की मूल रूप में रचना वही है, तो कह देते हैं कि भाई ठीक है, सेफ्टी स्टडी आप मत करिए, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन एक्सपीरियंस और एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, इट इज सेइंग रिक्वायर्ड एंड इफ रिक्वायर्ड, पब्लिश लिटरेचर रिक्वायर्ड। क्या अब यहाँ जब ये शब्द रिक्वायर्ड आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको न्यू इंडिकेशन के लिए क्लिनिकल ट्रायल चाहिए, क्लिनिकल स्टडी चाहिए, और वो भी एक पब्लिश्ड फॉर्म में। अब अलग बात है कि आपका SLA, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो किस पब्लिकेशन को मान लेता है कि ये पब्लिकेशन लाइसेंस देने लायक है। फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपका SLA, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, किस लेवल के पब्लिकेशन को, किस कैटेगरी के पब्लिकेशन को ये मान लेता है कि ये लाइसेंस देने लायक है। अब वो फ्रंटरीज में छपा हो, स्प्रिंगर में छपा हो, एल्सवेयर में छपा हो, JIM में छपा हो, आयु में छपा हो, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के आयुर्वेदा केस रिपोर्ट में छपा हो, या एकदम से कहीं जाकर के UGC केयर लिस्ट से भी नीचे जो कि एकदम डंप पब्लिकेशंस हैं, ब्लैक लिस्ट वाले, जिनका कोई और छोर नहीं है, वहाँ से भी पब्लिश करा करके कोई दे दे और SLA कहे कि हाँ भाई बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा नया इंडिकेशन आया है, वाह वाह क्या बात है, ये तो एकदम नई चीज़ आपने ले आया। आपने कहा कि ये जो रासना सप्तकवात है, इसको लेने से इसका प्रभाव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बहुत अच्छा है और ये हृदय है, और छपवा दिया आपने कहीं किसी भी रूप से जहाँ कोई स्क्रूटनी नहीं है, और SLA उस पर आपको लाइसेंस दे दें न्यू इंडिकेशन के लिए, तो यहाँ गड़बड़ घोटाला है। यहाँ ज़रूरत है SLA को और इस नोटिफाइंग बॉडी को। वो फिर वो कहेगा कि हम हर चीज़ लिख के ही दें, कॉमन सेंस नहीं लगाएगा SLA। बात बिल्कुल सही है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपना कॉमन सेंस तो लगाना होगा ना वहाँ, कि हम किस पब्लिकेशन को योग्य माने कि उस पर हम लाइसेंस इशू कर सकें। तो ये विजडम ऑफ द SLA है और विजडम ऑफ द कंपनी भी है। तो यहाँ पर आपको एक प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस देना होगा क्लिनिकल ट्रायल के साथ, प्रॉपर CTRI स्टडीज़ के साथ, और तब उस पर आपको क्लासिकल फार्मूले पर न्यू लाइसेंस मिलेगा। अब आते हैं, इसमें टोटल 5 कॉलम्स हैं जिनमें आज हम सिर्फ 2 कॉलम लेना चाहते हैं। अब आते हैं रूल 158 सेकंड B पर। For issue of license with respect to the patent and the proprietary medicine, the conditions related to the safety studies and experience or the evidence of effectiveness shall be specified as follows। वही कॉलम 1 2 3 4 5 6 के 2 हिस्से, पब्लिश लिटरेचर एंड द प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस। ये ऊपर की तीनों चीज़ें थी किसके लिए? क्लासिकल फार्मूलेशन के लिए। नो चेंज, नथिंग रिक्वायर्ड। न्यू डोजेस फॉर्म, nothing required, but new indication, proof of effectiveness required, and that is with the clinical trial studies। आइए पेटेंट प्रोप्राइटरी के लिए देखते हैं क्या कहती है सरकार। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ओके गुड, दिस इज द कैटेगरी ऑफ द 3H। इंग्रेडिएंट्स एज पर द टेक्स्ट, मतलब वही वहाँ से होना चाहिए, कहाँ से? उनके फार्मूलेशन में से, कोई बाहर से नहीं। इंडिकेशन टेक्सचुअल रेशनल, वर्ड है नेक्स्ट, टेक्सचुअल रेशनल, कि हमने जहाँ कहीं से भी कुछ चीज़ें जोड़ी उनका गुण वो हो जिसके लिए कि हम वो दवा क्लेम कर रहे हैं वही हो, सिमिलरिटी हो। देन सेफ्टी स्टडी नॉट रिक्वायर्ड, वेरी गुड, क्योंकि वो घटक तो वही है और इंडिकेशंस भी वही हैं, तो सेफ्टी स्टडी यहाँ नहीं चाहिए। पब्लिश लिटरेचर
चाहिए। किसका चाहिए? फार्मूला तो क्लासिकल है नहीं, उन इंग्रेडिएंट्स का चाहिए और उन गुणों के लिए चाहिए। तो कहाँ से आप देंगे? आप उठाइए, सबसे अच्छा तरीका भाव प्रकाश, द्रव्य गुण की वो किताबें जो वहाँ लिस्टेड है, क्योंकि यहाँ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आपको देना है ना, फॉर्मुलेशन के ऊपर नहीं देना है। और उनके जिराक्स उसी गुण को अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए जमा करिए SLA के पास। प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस, यस, यहाँ पर है पायलट स्टडी एज पर रिलेवेंट प्रोटोकॉल फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग। सारा खेल यही हो गया है पूरा। अब प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस चाहिए, लेकिन वो कैसे चाहिए कि पायलट स्टडी एज पर द रिलेवेंट प्रोटोकॉल फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स, मतलब कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, GCP। और GCP एक बार रूल 170 में नोटिफाइड हुई, कैप्टिन एबियंस। ये रूल 170 बड़ा दुर्भाग्यशाली नंबर है। इस पर 3 नोटिफिकेशन में पिछले 10 साल में देख रहा हूँ और सभी नोटिफिकेशन कैप्टिन एबियंस चले जाते हैं। ये एयरप्लेन की सीट नंबर 13 हो गया है। इसलिए रूल 170 में जो भी कुछ नोटिफाइड होती है उस पर मुकदमा होता है और कैप्टिन एबियंस चली जाती है। फिर ये जो GCP है प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइन CCRS के भी वेबसाइट पर पड़ी हुई है और उसमें वो वही गाइडलाइन है जो ICMR से उठाई गई है और 35 प्लेसेस पर कन्वेंशनल या जो भी उनका शब्द था वहाँ पर ASU मेडिसिन डाला गया है। तो ये प्रोटोकॉल कौन सा है? SLA को स्पष्ट नहीं होता है कि किस प्रोटोकॉल को माने, CCRS की गाइडलाइंस को माने, या जो रूल 170 में जो नोटिफाइड था वो माने, या किसकी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस मान लें। लेकिन चलिए, यहाँ पर कानून की भाषा है और कानून का एक किताब है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पायलट स्टडी एज पर द रिलेवेंट प्रोटोकॉल फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग। एंड व्हाट इज दैट रिलेवेंट प्रोटोकॉल? दैट इज अगेन left on the wisdom of the SLA. Next, Ayurveda Siddha Unani drug which with any of the ingredients of Schedule E1 of the Drug and Cosmetic Act 1940. Here, in the real sense, this should be Schedule E1 of the Drug Rule 1945. Kindly change it. Once again, I never believe in the finger raising. Certainly, I never believe. My whole conduct is, you can evaluate. It is always supportive. अब ये कॉपी पेस्ट का कमाल है। जिस व्यक्ति ने भी वहाँ पर बनाया इसको DCC में, उसको लिखना चाहिए था कि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स विथ एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द शेड्यूल E1 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और इस पर जब जाएंगे कहीं पीनल एक्शन के लिए, तो जो वकील खड़ा होगा कंपनी की तरफ से, वो कहेगा कि शेड्यूल E1 इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मिलॉर्ड 1940 का, ये पार्ट ही नहीं है, तो ये कैसे अप्लीकेबल होगा? और वहीं पर पिटीशन खत्म। कानून तो साक्ष्य ढूंढता है ना, वो इसीलिए ये बोलेगा कि शेड्यूल E1 तो पार्ट ही नहीं है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो यहाँ नोटिफाइड है। वहाँ तो बस 2 ही शेड्यूल हैं, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकेंड, और कोई शेड्यूल ही नहीं है। ये कहाँ की बात करते हैं, कहाँ का कानून लाए हैं? तो इतने बड़े बड़े लोचा लोगों ने दे रखे हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, थोड़ा ड्राफ्टिंग को ढंग से देखना चाहिए। तो शेड्यूल E1 ऑफ द ड्रग रूल 1945 वर्ड यहाँ आएगा, इवन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बदल चुका है। ड्रग रूल 1945 हो चुका है और कॉस्मेटिक रूल्स 2020 हो चुका है। तो यदि मेरी बात पहुँच रही हो आप तक, तो DCC को कहिए कि यहाँ पर वो अमेंडमेंट कर दें, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमेंडमेंट हो जाएगा। इसमें पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्ट नहीं है, ये रूल्स है, इस पर सिंपली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए। कहाँ समय है? सवाल तो ये है। वाकई लोग बहुत ओवरलोडेड हैं, बहुत प्रेशर में हैं काम करने में वहाँ पर, और एक समस्या थोड़ी नहीं, बहुत सारी समस्याएं रोज़ आती हैं, उनको सब लोग डील कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना ही होगा, क्योंकि हम मास्टर लोगों की दिक्कत हो जाती है जब हम ये पठन पाठन में आते हैं। तो चलिए, आप अपनी किताब में इसको काट के लिख लीजिए, इसको कोई नहीं गलत काट सकता। ये जो लिखा हुआ है वो गलत है, हाँ, ये जो लिखा हुआ है वो गलत है। आप काट के लिखिए कि शेड्यूल E1 ऑफ द ड्रग रूल्स 1945। आगे बढ़ते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स एज पर टेक्स्ट, इंडिकेशंस एग्जिस्टिंग जो इस समय हैं,
सेफ्टी स्टडी देखिए यहाँ पर कर दिया गया है रिक्वायर्ड। तो यदि वहाँ पर मर्क्यूरियल, आर्सेनिकल, वत्सना, कुचला, शेड्यूल E1 में ये जो सारी चीज़ें ड्रग रूल 1945 में ये नोटिफाइड हैं, अगर वो आपके PNP के घटक हैं, क्लासिकल के घटक हैं, तो आपको सेफ्टी स्टडी नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, अगर यही शेड्यूल E1 के ड्रग आपके किसी क्लासिकल फार्मूलेशन में हैं तो वहाँ सेफ्टी स्टडी नहीं चाहिए। वहाँ पर इतना बड़ा विश्वास दर्शाया गया है क्लासिकल फार्मूलेशंस के औषधि पार्ट संयोजन में कि वहाँ सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्टिक औषधि पार्ट संयोजन बहुत अच्छा है। अगर ये कोई विषय द्रव्य है वहाँ का शेड्यूल E1 का, तो उसको बैलेंस करने के लिए आचार्य ने वहाँ और घटक मिलाए हुए हैं, इसलिए वहाँ सेफ्टी स्टडी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ जहाँ आप भानुमति का कुनबा जोड़ रहे हैं, पेटेंट कहीं का रोड़ा, कहीं का तिनका, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो आप कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा करके एक नया फॉर्मुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। बस उसी शर्त का पालन कर रहे हैं कि ये जो घटक है वो आयुर्वेद की क्लासिकल ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बुक के फॉर्मुलेशन में हो, तो फिर आप यहाँ पर अगर उन घटकों के साथ एक घटक शेड्यूल E1 का जोड़ते हैं तो आपको सेफ्टी स्टडी करनी होगी, क्योंकि उसका उन घटकों के साथ इंटरेक्शंस क्या है वो क्लासिकली फार्मूलेशंस का तो प्रूव्ड है, बट आपके फार्मूलेशन का जिसके लिए कि आपको लाइसेंस दिया जा रहा है वो अभी प्रूव्ड नहीं है, उनका अपना इंटरेक्शन, इसलिए आपको वहाँ पर सेफ्टी स्टडी करनी होगी। और फिर $1 मिलियन का क्वेश्चन कि सेफ्टी स्टडी किसकी गाइडलाइन के हिसाब से, शेड्यूल Y ऑफ द ड्रग रूल 1945, OECD गाइडलाइंस, और द गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय द CCRS, द 3 गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय द CCRS, क्लिनिकल स्टडी, ड्रग डेवलपमेंट एंड टॉक्स सेफ्टी प्रोफाइल। किसकी स्टडी से? SLS यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है फुट नोट में, आपकी किताब में है तो मुझे बताइए। फुटनोट में तो है नहीं कि कौन सी स्टडी वो मानेंगे और कौन सी स्टडी नहीं मानेंगे, किसकी गाइडलाइन मानेंगे, किसकी गाइडलाइन नहीं मानेंगे। छोड़ दिया है SLA निश्चित करे कि आपकी सेफ्टी स्टडी किसकी गाइडलाइन से होगी। फिर वैसे ही फ़ोन मिलते हैं कि सेफ्टी स्टडी कैसे की जाएगी। अरे भाई डाल दीजिए ना एक फुटप्रिंट यहाँ पे कि सेफ्टी स्टडी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दिस, आगे देखते हैं शायद कहीं हो। तो सेफ्टी स्टडी रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पर पब्लिश लिटरेचर भी देना होगा रिक्वायर्ड, और चूंकि आपकी ड्रग नहीं है इसलिए आपको पब्लिकेशन देना होगा, क्लासिकल रेफरेंस आपको मिलना नहीं है। और फिर प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस भी रिक्वायर्ड, अच्छा खासा आपको रिसर्च करनी है तभी आपको नया ड्रग मिलेगा, तो करिए। फिर जो ये बात करते हैं थर्ड में कि फॉर इशू ऑफ लाइसेंस विद रिस्पेक्ट टू द, अब इसको अगली बार में लेते हैं कि बल या पोषक मेडिसिन पर्सन हु अप्लाइड फॉर द लाइसेंस रिक्वायर्ड, इसको अगले सोमवार के लिए छोड़ते हैं। और आज हम लोग अपना डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की तारीख हो गई 4, तो रूल 158 पर अगला डिस्कशन वी विल टेक अप ऑन द नेक्स्ट मंडे। आज बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, रोज़ ही होता है लेकिन आज और भी अच्छा था, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल की एक्ट की किताब, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग रूल 1945 की एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किताब खोलिए, देखिए, पढ़िए, कुछ ना बात आती हो कमेंट बॉक्स में जाइए, बोलिए, बताइए। और रूल 158B पार्ट 2 A एंड B हमने आज कवर किया। अब पार्ट 3, पार्ट 4, 5 अगले इंट्रैक्शन में, फिर उसके अगले इंट्रैक्शन में रूल 158C, एंड देन वी विल गो टू द रूल 159 एंड देन 60 एंड अप टू द 70। थैंक यू। फिर मिलते हैं। रूल रेगुलेशन और इन चीज़ों को देखते रहिए और एनालिटिका आयुर्वेद को प्रमोट करते रहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया सब्सक्रिप्शन नंबर और वॉचिंग आवर्स यूट्यूब को भी यह कहेगा, संदेश देगा कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए
और आप तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि सब्सक्रिप्शन, बेल आइकन, सारी चीज़ों को करिए जो यूट्यूब में एक आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। और इन चीज़ों को पीजी स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, इवन दैट अमॉन्ग द टीचर्स प्रोपोगेट करिए, और इसमें जो भी कमी हो रही हो बतावें, हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। फिर अगले सोमवार को मिलते हैं रूल एंड रेगुलेशन के साथ। नमस्ते।